پھر میں نے اپنے سر سے سیکھنا شروع کیا اور میں نے خدا کی شکر گزار ہوں کہ اور گوڈ بلیس چینل کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پر بلایا کہ میں خدا کے کلام کو ہر ایک سے شیئر کر سکوں. اور یہ ایک خداوند کی طرف سے ہمیں ملا ذریعہ ہے کہ ہم اس ذریعے کے ذریعے خداوند کے کلام کو دور دور تک پہنچا سکیں, کیونکہ خداوند کے کلام میں مرقوم ہے کہ جب تک ہر ایک زبان میرا اقرار نہیں کرے گی تب تک میرا آنا ناممکن ہے. تو یہی ہے کہ ہم نے خداوند کے کلام کو ہر کسی تک پہنچانا ہے, تاکہ یہ کوشش کرنی ہے کیونکہ ہم نے پہنچانا ہے تو انہوں نے اقرار کرنا ہے. اگر ہم نے پہنچانا ہی نہیں تو کسی نے اقرار بھی نہیں کرنا, کیونکہ آج ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس لائق سمجھا کہ میں خداوند کے کلام کو ہر ایک تک پہنچا سکوں, کیونکہ ہر ایک زبان اقرار کرے اور ہم خداوند کے آنے کا جلد سے جلد مینس کے خداوند کو دیکھ سکیں. جی میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول ہے کہ ہم کس طرح سے خداوند کے کلام کو پہنچا رہے ہیں, اس کا پرچار کر رہے ہیں, اور اسی چیز کے اندر ہم نے ایک اور چیز کو انکلوڈ کیا ہے. جس طرح سے ہمارا چینل جو ہے گاڈ بلیس ٹی وی, وہ کس طرح سے نیو ٹیلنٹ کو متعارف کروا رہا ہے اور اس سے خداوند کے نام کو بھی جلال مل رہا ہے. اس سے بھی بہت سی روحیں, ہماری دعا ہے کہ بچ کر خداوند کے حضور میں آئیں, اپنا دل خداوند کو دیکھ, جب کلام کو سنیں تو اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں. بہن, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی فیملی میں کوئی اور بھی مسیح کے ساتھ چل رہا ہے, اس فیلڈ میں ہے, یا آپ اکیلے ہی خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں؟ ابھی تک تو میرے گھر میں سے ویسے دعا سبھی کرتے ہیں, پر اس فیلڈ میں کوئی بھی نہیں ہے. جی, سارے ابھی اپنے کاموں میں مصروف ہیں. تو خدا چرچ جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, پھر اس کے خداوند کے حضور ابھی اس لائق نہیں, خدا نے شاید انہیں بنایا یا سمجھا کہ وہ خداوند کے کلام کو دوسروں سے شیئر کر سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کے ذریعے آپ کی فیملی کو بھی اس فیلڈ میں لے کے آئے گا کہ وہ ایک بندے کے وسیلہ سے اس کا گھرانہ جو ہے وہ نجات پاتا ہے. ہماری دعا یہ ہے کہ آپ بہت سی روحوں کو بچانے کا سبب بنیں. میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ اپنے علم کو ہمارے ساتھ شیئر کریں, جو کلام آپ خدا نے آپ کے اندر رکھا ہے وہ کلام دوسروں تک شیئر کریں, تاکہ اس سے سب سننے والے برکت پائیں. آج جو میں خداوند کا زندہ کلام آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں, اور میں شکر گزار ہوں اور شکر گزاری کرتی ہوں سب دیکھنے والوں کے لیے, دیکھنے والوں کے. تو آج جو خداوند کا زندہ کلام ہے سب سے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ خداوند جو ہمیں آزادی بخشی ہے, خداوند کے کلام کے مطابق ہم آزاد ہو گئے ہیں. کیا ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اس آزادی کو محسوس کر رہے ہیں, یا اپنے آزاد ہو چکے ہیں تو ہم اپنے آپ کو آزاد فیل کر رہے ہیں یا نہیں؟ آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے. گلتیوں کا خط, اس کا 4 باب اور اس کا 31 آیت اور اس کا 5 باب کی اس کی 1 آیت. خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے, پس اے بھائیو, ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے ہیں. مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے, پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ جتو. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو, آمین. خداوند کا زندہ کلام بیان کرتا ہے کہ میں نے تمہیں آزاد کیا ہے. اگر ہم دنیا میں غور کریں تو ہم آزاد تو ہو چکے ہیں, پر ہم اپنی آزادی کو آزادی نہیں فیل کر رہے. ہم پھر بھی خداوند نے تو ہمیں آزاد کر دیا, لیکن آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے بیماریوں کی غلامی میں, اسیری میں ہیں. ابھی بھی ہم بہت سی گناہوں کی غلامی میں جوئے ہوئے ہیں, کیونکہ ہم غلامی میں گھیرے ہوئے ہیں. کیونکہ خداوند نے تو ہمیں آزاد کر دیا, لیکن ہم آزاد نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو آزاد فیل ہی نہیں کر رہے, آزاد محسوس ہی نہیں کر رہے, کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ کو آزاد محسوس نہیں کریں گے, ہم خداوند کی آزادی کو بھی اپنی زندگی میں ریسیو نہیں کر سکیں گے. کیونکہ ہمیں بیماریاں گھیر لیتی تو ہم انسان محسوس کرتا ہے کہ ہم شاید ہماری یہ قسمت میں ہے, یا ہماری قسمت ہی ایسی ہے, یا خداوند کی طرف سے یہ خداوند کی طرف سے نہیں, یہ ہمارے اپنے گناہ ہیں جو ہم گناہوں کی غلامی میں گھیرے ہوئے ہیں, اپنے بیماریوں کی غلامی میں گھیرے ہوئے ہیں, اور بہت سی ایسی جو دنیاوی چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں. ہم ابھی بھی اپنی زندگی کو دنیاوی زندگی محسوس کرتے ہیں اور روحانی نہیں بن رہے. خداوند نے ہمیں آزاد کیا, ہم اپنی آزادی کو محسوس نہیں کر رہے کہ خداوند نے ہمیں آزاد کیا اور کس لیے آزاد کیا ہے. خداوند نے ہمیں آزاد کیا کہ ہم آزادی سے جی سکیں, آزادی سے اس کی حمد و ثنا کر سکیں, لیکن ہم اپنے آپ کو آزاد نہیں استعمال کر رہے. ابھی بھی ہم بیماریوں میں, اب بھی ہم بہت سی دنیاوی چیزوں میں گل مل گئے ہیں کہ ہم اپنی آزادی کو فیل ہی نہیں کر رہے, محسوس نہیں کرتے.
खुदावंद का कलाम यही बयान करता है कि हमें आज़ाद है। खुदा ने हमें आज़ाद किया, फिर हम आज़ाद क्यों नहीं है? क्यों नहीं हम अपनी आज़ादी को महसूस कर रहे? यही कलाम, खुदा के कलाम से हमने सीखना है कि खुदा ने तो हमें आज़ाद किया, फिर हम क्यों बीमारियों की गुलामी में हैं? क्यों हम बेरोज़गारी की गुलामी में हैं? क्यों हम गुनाहों की गुलामी में हैं? हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर हम खुदावंद के कलाम में से देखें, इब्राहिम का, अगर हम इब्राहिम की हिस्ट्री को पढ़ें खुदावंद के कलाम में से, उसकी 2 बीवियाँ थी, एक सारा और एक हाजरा। सारा पहले चूँकि बांझ थी और खुदा ने उसे औलाद नहीं बख्शी। फिर हाजरा थी, उसकी लौंडी थी, सारा की लौंडी हाजरा थी। तो सारा ने अपने शौहर इब्राहिम से कहा कि मैं चाहती हूँ कि तू मेरी लौंडी के पास जा, तो इसके वसीला से हमारे लिए औलाद पैदा हो। तो इब्राहिम ने सोचा, पर वो चला गया और खुदा ने उसको बरकत बख्शी और उसके वसीला से उसके लिए एक औलाद पैदा हुई। उससे क्या, कौन सा बेटा पैदा हुआ? इस्माइल बेटा पैदा हुआ उसके लिए। तो कुछ अर्सा के बाद खुदावन ने सारा जो बांझ थी उससे भी औलाद बख्शी। खुदावन ने उसे भी औलाद बख्शी, और जब सारा ने सोचा कि ये इस्माइल जो कि लौंडी का बेटा है, मेरे बेटे के साथ वारिस नहीं कहलाएगा, इस तरह तो मेरा बेटा गुलामी में चला जाएगा, मेरा बेटा उसका गुलाम बन के रह जाएगा। उसने सोचा, तो उसने अपने शौहर से कहा कि तू इसे निकाल दे, तू इसे मेरे घर से रुखसत कर दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं तेरी बीवी हूँ और मैं तेरी बीवी होती हुए मेरा बेटा जो कि इस लौंडी का बेटा इस्माइल की गुलामी करे, वो नहीं चाहती थी। इसी तरह खुदा भी आज चाहता है कि हम भी किसी के गुलाम ना बने, किसी के मुहताज ना बने। हम खुदा ने आज़ाद किया तो हमें आज़ादी को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करें। और फिर इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने जब सोचा, उसे बुरा लगा कि आखिर वो भी उसकी औलाद है, पर फिर भी खुदा ने उसे हुक्म दिया कि तू उसे जाने दो, जैसा सारा तुझसे कहती तू वैसा ही कर। सो उसने उसे रुखसत कर दिया, और इसी तरह उसने अपने बेटे की आज़ादी चाही। आज खुदावंद के बेटियां और बेटे होने के नाते आज खुदावंद भी यही चाहता है कि हम आज़ाद हैं। खुदावंद ने हमें आज़ाद किया, फिर हम क्यों गुलामी में जा रहे हैं? क्यों हम बीमारियों में गुल मिल गए हैं? क्यों हम बीमारियों को, अपनी आजमाइशों को अपनी किस्मत समझ लेते हैं? क्यों हम बेरोज़गारी को अपनी किस्मत समझ लेते हैं? ये नहीं है, ये हम गुलामी में हैं अभी भी, क्योंकि हम अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं कर रहे। जब तक हम अपने आप को आज़ाद नहीं ना महसूस करेंगे, हम गुलाम ही ठहरेंगे, हम असीर ही ठहरेंगे। जब तक हम अपने आप को आज़ाद महसूस करना शुरू कर देंगे ना, तो हम यकीनन खुदावंद के फजल से हम अपने आप को आज़ादी में महसूस करेंगे, तो खुदावंद हमें बरकत देगा और हम किसी भी तरह की बीमारी में, किसी भी तरह की और गुनाहों में नहीं मुबतला होंगे। आज खुदावंद का कलाम बयान करता है कि हम आज़ाद किए हुए हैं। खुदावंद ने हमें आज़ाद कर दिया है। हम किसी लौंडी की औलाद नहीं, हम शाही फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। हम खुदा के फ़र्जंद हैं। चाहे हम गरीब भी हैं ना, तो इसमें आप खुशकिस्मती समझे, क्योंकि खुदावंद का कलाम बयान करता है, जो ज़मीन पर गरीब है, आसमान पर ख़जाना मिलेगा उसे। यकीनन खुदावंद का कलाम बरहक है और सच्चा है। वो अपने कौल का पक्का है, वो अपने कहने से कभी भी नहीं मुकरता। बेशक ऐसा ही है। और खुदावंद का कलाम आज यही बयान कर रहा है कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ादी हमने हासिल कर दी है। खुदा ने हमें आज़ाद कर लिया, तो हमें अपनी ज़िंदगी में आज़ादियों को महसूस करना है, और हर तरह की बीमारी से जो कि हम अपनी किस्मत समझ के बैठ जाते हैं, उससे आज़ादी हासिल करनी है। आज़ादी किस तरह? आज दुनियादारी में देखा जाए तो सबसे बड़ी गुलामी पैसे की है। इंसान पैसे के लिए हर एक काम कर रहा है, हर एक चीज़ कर रहा है। उसे होशो हवास ही नहीं है कि वो किस तरह की गुलामी में है। आज दुनिया में सबसे बड़ी, मैं समझती हूँ, गुलामी यही है कि पैसे की गुलामी है। जब तक हमारा ईमान ही नहीं है कि खुदा ने हमें आज़ाद किया है, सारी चीज़ें पैसे से नहीं मिलनी। हम क्या ये चीज़, हम खुदा की बादशाह को हम पैसे से खरीद सकते हैं? हरगिज़ नहीं, क्योंकि खुदा ऐसा फजल वाला खुदा है कि हम उसकी बादशाह को हरगिज़ पैसे से नहीं खरीद सकते। ये एक कौल है, ये एक सच है कि हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जानी है। हम खुदावंद के अगर कलाम को देखो तो एक गहरा समुंदर, इसे समझने की कोशिश करनी है। जी, खुदावंद आज के खूबसूरत कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। जैसा कि बैन के वसीला से अभी हमने कलाम को सुना, खुदा के कलाम में लिखा है कि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। सो हमें अपनी आज़ादी को महसूस करने की ज़रूरत है, उस फ्रीडम को महसूस करने की ज़रूरत है जो खुदा ने हमें दी है। हर तरह के गुनाह को अपनी ज़िंदगी से निकालें,
हर तरह की गुलामी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, हर उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें जो हमें गुलामी की तरफ लेके जाती है। हम आज़ाद किए हुए हैं, आज़ादी से ज़िंदगी बसर करें, इससे खुदावंद के नाम को जलाल मिले। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। जब खुदावंद का खौफ हमारे अंदर आ जाएगा तो इल्म बढ़ोतरी करता जाएगा, हमारी ज़िंदगियों में इल्म की फरावानी होगी, इससे भी खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा। सो व्यूवर्स, मैं आप सबकी शुक्रगुजारी करती हूँ और बहन कायनात आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और हम सब ने मिलकर खुदावंद के कलाम को सुना। शुक्रगुजारी करती हूँ हमारे गॉड ब्लेस टीवी चैनल की कि वो तरह बतरह से खुदा के कलाम को फैलाने के लिए कोशिश कर रहा है और हर उस काम को कर रहा है जिससे खुदा के नाम को जलाल मिले। अपने इस प्लेटफॉर्म की गॉस्पल फॉरवर्ड चर्च मिनिस्ट्री की शुक्रगुजार हूँ, जिसके प्लेटफॉर्म से हम आप सबसे बातचीत कर रहे हैं, खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ एक मरतबा फिर से हमारे गॉड ब्लेस टीवी चैनल का, और न्यू टैलेंट के जो नए प्रोग्राम्स आप लोगों के साथ मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं, ये सारी कोशिश हमारे गॉड ब्लेस टीवी चैनल की है। मेरी दुआ है खुदा हमारे चैनल को और ज़्यादा बरकत दे और उससे खुदावंद के नाम को जलाल मिले। सो व्यूवर्स, आए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे प्यारी बहन के लिए कि खुदा इसे और ज़्यादा कलाम की बरकत दे ताकि ये बहुत सी रूहों को बचाने का सबब बने। कदूस मेहरबान जिंदा पाक खुदा, रहमतों के बानी, इत्मीनान की सरचश में यहोवा पाक खुदा, ते शुक्रगुजारी करते हैं सारे खूबसूरत मौका के लिए जो हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया कि हमने तेरी बेटी के वसीला से तेरे कलाम को सुना। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन गॉड ब्लेस टीवी चैनल के लिए जो हर तरह से इस कोशिश में है कि खुदा के कलाम को फैलाया जाए और खुदा की बेटों बेटियों को खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल किया जाए और मुतारफ़ करवाया जाए ताकि किस तरह से खुदा अपने नाम को जलाल देता है। सो शुक्रगुजारी करते हैं खुदा पाक खुदा तेरी तमाम तर बरकतों के लिए, अपनी तमाम तर चर्च की मैनेजमेंट टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, उनके लिए तेरी और ज़्यादा बरकत को मांगते हैं। एक मरतबा फिर से तेरी बेटी के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं। अपनी बेटी पर अपनी बरकत को नाजिल कर, इल्म सीखने का खुदा पाक खुदा रूह अता कर ताकि तेरी बेटी तेरे कलाम को और ज़्यादा सीखे और रूहों को बचाने का सबब बने। तेरा शुक्र हो, तेरे जिंदा नाम की तारीफ हो, मसीह यीशु के पाक नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। सो व्यूवर्स, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा। मैं थैंकफुल हूँ आप सबकी कि आप हमें पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। सो आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे गॉड ब्लेस टीवी चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि इससे हर नई आने वाली वीडियो जल्द आपको मिलेगी और इससे खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस टीवी। आमीन।